हाय फ्रेंड, वेलकम टू जीवन सर जियो ऑनलाइन। आज मैं आपसे बात करूंगा प्लानिंग रीजन इन इंडिया। व्हाट इज़ प्लानिंग? नियोजन होता क्या है? प्लानिंग इज ए सोशियो इकोनॉमिक process with proper direction to achieve desired objective in any region. If any region is identified for the planning purpose, that is called planning region. See, planning India since independence focused on sectoral planning. 1960s, 70s, some of the scholars like R.P. Misra 1968 and institutions like Town and Country Planning Organization, that is TCPO, a reputed technical advisory body of the Government of India, accepted one framework of regionalization of regional planning in India. Why this is regional actually planning is important? Because after implementation and some fruits of the green revolution, the regional disparity increased in 70s, 80s, and people, geographers, planners, scholars, experts realized importance of the regional planning. And that is why R.P. Misra, renowned planners, and the TCPO as an institution divided India into several regional planning regions on the basis of homogeneity in physical features, resource-based socio-economic resources, human resources, and their level of utilization, uses of technology, utilization of the resources, mineral resources, and other available resources in particular region. Now, the planning region required some important aspect. One is it should be self-sufficient within, in terms of resources, in terms of mineral resources, non-mineral resources, human resources, research, innovations in different sectors like agriculture and industrial development and services sector, including high level of actually research. That research institution should be there so that the common people can get the help in formulation of the program for implementation of those actually program for achieving the desired objective of socio-economic development in the particular region. So, planning region is basically is also known as functional region, and that is focusing on certain problem, and that is why majority of the planning regions are called problem region also. So, planning region can be of general planning region or specific problem based planning region. For example, drought prone area can be considered as a planning region for the development of agriculture in the particular region, for management of the water in the region. Likewise, any urban area, there are so many in Western countries, planning concept started actually in as urban planning itself. So, land use pattern, how to develop proper land use pattern in urban area, this process was actually considered as planning in Western countries. But in India, the planning is not for only urban areas, but the planning is all about at actually in rural areas as well. So that is country level planning, and that is why India has been divided into 13 planning regions as per the city TCPO, that is Town and Country Planning Organization. So, let's start all 13 actually planning region by just naming it. First is South actually Peninsular region, that includes Kerala and Tamil Nadu. Central actually Peninsula, that is Karnataka, Goa and Andhra Pradesh. Western actually Peninsular region, that is Western Maharashtra, coastal interior districts. Central Deccan includes Eastern Maharashtra, Central and Southern Madhya Pradesh. Eastern Peninsular region, that includes Odisha,
Jharkhand, northeast Andhra Pradesh, and Chhattisgarh. Then sixth one is Gujarat, seventh one is Western Rajasthan, that includes Aravalli, Eastern Rajasthan, Western Madhya Pradesh, Aravalli region, that is eighth, and the ninth is Jammu and Kashmir, Ladakh, and 10th Trans-Indo-Gangetic Plain and Hills, and 11th Ganga Yamuna Plains and Lower Ganga Plain, that includes Bihar and West Bengal, and northeastern region, that Assam, northeast Sikkim, and North Bengal. So 13 macro level actually planning region have been actually India has been actually divided into 13 planning region, and those 13 planning region again further actually divided into meso region and 35 meso region and 3 metropolitan region like NCR, etc. So let's start with the one by one planning region. अब चलते हैं हम एक एक करके साउदर्न पेनिनसुलर रीजन. अब साउदर्न पेनिनसुलर रीजन में केरला एंड तमिलनाडु आता है. देखिए ये स्टेट, दोनों स्टेट जो है अनडुलेटिंग टेरेन कंडीशन है और होमोजेनिटी इन द फिजिकल फीचर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, सोशियो इकोनॉमिक बेस जो है कहीं ना कहीं समानता पाई जाती है. अब देखिए ये फोकस दोनों स्टेट में आप देखेंगे एग्रीकल्चर बेस्ड है. अगर आप केरला की बात करें तो वहाँ पर आप देखेंगे मसाले 60 to 70% भारत में जितने भी मसालों की खेती होती है या कोकोनट, कॉफ़ी, ये सारे जो है आपके केरला क्षेत्र में होता है. सो प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज ए एक्चुअली फोकस एरिया इन दिस प्लानिंग रीजन. सो द रिसर्च इज एक्चुअली गोइंग ऑन to improve the breed of these actually crops, different masalas, spices, coconut and other things. Another point is fishing is a very economic, very important economic reason, actually economic activity in Kerala. Along with that, when you talk about industries, agro-based industries are developing there. माने वहाँ पर जो कृषि बेस्ड उद्योग है वहाँ पर विकास ये हो रहा है और एग्रो इंजीनियरिंग उद्योग भी वहाँ पर केरला में विकास हो रहा है. कॉटेज की आप दृष्टि से बात करें तो कोकोनट जो है नारियल बेस्ड जो है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हो रहा है. इसके अलावा आप देखेंगे कि नंबर ऑफ बैक वाटर्स आर अवेलेबल इन दैट रीजन एंड दैट इज हैविंग द पोटेंशियल ऑफ टूरिज्म डेवलपमेंट इन दिस रीजन, इन दिस प्लानिंग रीजन. सो व्हाट इज बैक वाटर? सम वाटर एक्चुअली, कुछ वाटर जो है समुद्र के जल जो है वो कोस्टल एरिया में धरातल के अंदर तक जो है वो आते हैं और कहीं ना कहीं मेर नुमा जो है आर्क वहाँ पर बनता है और उसी जो जमाव होता है उसको हम बैक वाटर कहते हैं. देखिए बैक वाटर का यहाँ पर पिक्चर है. इसके अलावा आप देखेंगे कि अगर हम दूसरे इसी एक्चुअली रीजन के दूसरे स्टेट को देखें जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु दैट इज एग्रीगेरियन स्टेट फोकसिंग ऑन पैडी, शुगर केन, पोटैटोज, ये 3 क्रॉप जो है वाइडली एक्चुअली वहाँ पर ग्रो होता है. इसके अलावा फिशिंग जो है वहाँ पर अगेन इम्पॉर्टेंट जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी है. अगर आप सिटीज़ की बात करें वहाँ पर तो उद्योग कुछ जो है डेवलप्ड हुए हैं जो एग्रीकल्चर एक्चुअली एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पर. चेन्नई में, कोयम्बटूर में, मदुरई यहाँ पर जो है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल हब जो है डेवलप्ड हुए हैं. तो ये हम बात किए इसके बारे में. आप देखेंगे कि दिस पार्ट इज एक्चुअली फर्स्ट रीजन इज कॉल्ड साउदर्न पेनिनसुला. नेक्स्ट पार्ट इज दैट इज next is that is central peninsular region that includes Karnataka, Goa and Andhra Pradesh, and that is the region is there. This is the second region, this is the second region, and this is there are 3 states in that. And if you see the geographical diversity in 3 states,
there are some major features like that. If you see Karnataka, the western part of the Karnataka, जो पश्चिमी भाग है उसको हम लोग मलनाड कहते हैं. जो वेस्टर्न घाट जो थोड़ा सा ऊंचा एक्चुअली प्लेस है, हिली एरिया है, वहाँ पर आप देखेंगे कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर बहुत ही फेमस है. उसके अलावा आप देखेंगे ईस्टर्न पार्ट जो है वहाँ पर जो है वो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर वहाँ पर होता है. इसके अलावा आप देखेंगे कुछ पार्ट में वहाँ पर जो है कॉटन की खेती भी जो है, कपास की खेती भी वहाँ पर होती है. आंध्र प्रदेश इज अनदर स्टेट that is in this actually planning region. Commercial agriculture is practiced where cotton, tobacco and chilies are widely grown in Andhra Pradesh. ये इस क्षेत्र में आप देखेंगे ये तीन क्रॉप बहुत ही पॉपुलर है. यहाँ पर इरिगेशन की अच्छी सुविधा है. गोदावरी नदी के नेटवर्क जो है यहाँ पर केनाल के नेटवर्क जो है अच्छा खासा है. इसके अलावा इस रीजन में आप देखेंगे कि बेंगलोर इज वेरी डेवलप्ड फॉर एयरप्लेन इंडस्ट्री, एरोप्लेन एक्चुअली उद्योग वहाँ पर है. इसके अलावा मैसूर, हुबली, देयर आर टू सिटीज़ वेरी पॉपुलर फॉर इंजीनियरिंग एंड एग्रो इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज. यहाँ पर मिनरल्स की दृष्टि से देखें तो बहुत खास करके आप देखेंगे कि फेरस बेस्ड जो है वो मिनरल्स अवेलेबल है. वहाँ पर कोल की संभावना जो है बहुत ही साउथ में कम है. तो ऊर्जा के रूप में वाटर रिसोर्स बेस्ड जो है हाइड्रल एक्चुअली पावर सोर्स जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है. अब हम बात करते हैं वेस्टर्न पेनिनसुलर रीजन. वेस्टर्न पेनिनसुलर रीजन में वेस्टर्न महाराष्ट्र, कोस्टल रीजन एंड इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं. ये वेस्टर्न महाराष्ट्र कोंकण से उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट्स इन महाराष्ट्र तक ये रीजन फैला हुआ है. बेसिकली दिस रीजन इज नोन एज इन्फ्लुएंस रीजन ऑफ द मुंबई मेट्रोपॉलिटन सिटी. अब देखिए ये वेस्टर्न वाला पार्ट है आपका, ये देखिए वेस्टर्न पेनिनसुला, ये थर्ड वन, ये वाला जो पार्ट है आपका, दिस पार्ट इज गोइंग टू बी अनदर रीजन. अब हम बात करते हैं मुंबई पुणे actually industrial belt can be developed in this comprehensive way. अभी आप देखिएगा कि वाजपेयी एक्चुअली गवर्नमेंट के समय ये बहुत अच्छे 4 to 5 लेन जो है वहाँ पर डेवलप हुए हैं मुंबई और पुणे के बीच. और उसके साथ साथ जो है साइड में औद्योगिक बेल्ट जो है बहुत अच्छा खासा वहाँ पर जो है विकास हुआ है. आप देखेंगे कि आसपास के सराउंडिंग रूरल एरियाज जो हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र है, सोलापुर, पालगढ़, रायगढ़ एरिया, वहाँ से लेकर पुणे तक आप देखेंगे ये जो सप्लाई कर रहे हैं या वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो टू द मेट्रोपॉलिटन मुंबई मेट्रोपॉलिटन सिटी को ये लगातार सप्लाई कर रहे हैं. तो मुंबई इज एक्चुअली वेल कनेक्टेड विद दिस प्लानिंग रीजन. तो ये हो गया. नाउ दिस रीजन इज ऑल्सो फेमस फॉर द रिजर्व ऑफ द फेरस, नॉन फेरस मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम खोपली एंड वीरा. ये दोनों जो स्टेशन है, पावर स्टेशन, वेरी पॉपुलर है, जो यहाँ पर औद्योगिक विकास के एक्चुअली पोटेंशियल को बढ़ाता है. तो इसके अलावा आप देखेंगे सेंट्रल दक्कन रीजन. देखिए सेंट्रल दक्कन रीजन में ये ईस्टर्न महाराष्ट्र आता है, सेंट्रल एंड साउदर्न मध्य प्रदेश. आप देखिएगा सेंट्रल दक्कन रीजन दैट इज फोर्थ वन, ये वाला पार्ट है आपका सेंट्रल दक्कन रीजन, फोर्थ वन. ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं. हाँ, तो ये हो गया. अब ये देखिए कि दिस इज फोर्थ वन. हाँ, इन दिस रीजन यू विल फाइंड कि ब्लैक सॉइल बहुत ही पॉपुलर है. और यहाँ पर ब्लैक सॉइल की खेती वहाँ पर जो है ब्लैक सॉइल में आप देखेंगे कि कॉटन कल्टीवेशन जो है बहुत वाइडली वहाँ पर होता है. अभी देखिए ये पिक्चर है कॉटन यहाँ पर कल्टीवेशन ब्लैक सॉइल में यहाँ पर हुआ है. यहाँ पर एक कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर जो है वरार एंड विदर्भ कैन बी डेवलप्ड एज ए सेंटर ऑफ द हॉर्टिकल्चर, बिकॉज इन दिस एरिया द हॉर्टिकल्चर डिमांड्स जैसे कि सब्जी हो गया, फ्रूट्स हो गया, ये सारा डिमांड जो है मुंबई, नागपुर, ये सारे एरिया में जो है यहाँ पर पहुँचाया जा सकता है अगर इसको हम हॉर्टिकल्चर क्षेत्र में के रूप में इसको डेवलप करें. इसके अलावा अगर हम मिनरल्स की बात करें तो चंद्रपुर इज फेमस फॉर मैग्नीज एंड कॉपर एंड मेनी इंडस्ट्रीज लाइक कॉटन, टेक्सटाइल, केमिकल एंड एग्रो इंजीनियरिंग हैव वेल डेवलप्ड इन सिटीज लाइक नागपुर, भोपाल, इंदौर एंड रतलाम. इस सब सिटीज़ में खास करके कॉटन टेक्सटाइल जो है उद्योग बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है. तो वस्त्र उद्योग जो है यहाँ पर अच्छा खासा. अब हम बात करते हैं फिफ्थ का ईस्टर्न पेनिनसुलर रीजन, दैट इज फिफ्थ रीजन एंड दिस इज द फिफ्थ रीजन, ईस्टर्न पेनिनसुलर रीजन. एंड ये देखिए ईस्टर्न पेनिनसुलर रीजन, दिस रीजन इज कॉल्ड ईस्टर्न पेनिनसुलर रीजन. दिस इज फिफ्थ वन, दिस इज फिफ्थ वन. This is Eastern Peninsula region. This region is there. So this region is Eastern Peninsula region.
नाउ दिस कंसिस्ट ऑफ उड़ीसा, आप देख सकते हैं उड़ीसा, एंड देन यू विल फाइंड हियर दैट उड़ीसा के बाद आप देखेंगे यहाँ पर उड़ीसा, झारखंड, नॉर्थ ईस्टर्न, आंध्र प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, ये 4 स्टेट्स के जो एरिया है यहाँ पर जो है इस प्लानिंग रीजन के अंतर्गत आते हैं। द टेरेन कंडीशन एक्चुअली इज वेरी हार्श एंड वेरी डिफिकल्ट, एंड दैट इज द रीजन बिहाइंड कि वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क जो है बहुत अच्छा डेवलप्ड नहीं हो पाया है, और कई एरिया जो है रिलेटिवली आइसोलेटेड हैं, और इसमें क्या है कि ओवरऑल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट उस लेवल पर हो नहीं पाया है, क्योंकि ट्राइबल पॉपुलेशन यहाँ पर अधिक मात्रा में है, और उनको मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास गवर्नमेंट के द्वारा लगातार किया जा रहा है, और थ्रू डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल प्रोग्राम के थ्रू। तो नाउ द थिंग इज दैट दिस एरिया इज वेरी पॉपुलर फॉर रिच मिनरल रिसोर्सेज बेस एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अगर हम बात करें यहाँ पर फेरस बेस्ड आप देखेंगे आयरन, कोल, जितने प्रकार के जो मिनरल्स हैं यहाँ पर आपको इजिली उपलब्ध है, एंड दैट इज वाई यू विल सी दैट ये कि आप यहाँ पर देखेंगे कि आयरन स्टील प्लांट यहाँ पर सरकारी एक्चुअली सेक्टर में आप देखेंगे बोकारो, राउरकेला एंड भिलाई, ये तीनों जो है पब्लिक सेक्टर का है, और प्राइवेट सेक्टर में टाटा जो साक्षी में जमशेदपुर में ये जो है स्टार्ट हुआ था 1907 में आसपास। तो ये आप देखेंगे कि ये जो उद्योग है आयरन स्टील प्लांट वहाँ पर वेल डेवलप्ड यहाँ पर हुआ है। लेकिन अगर आप रीजनल प्लानिंग की दृष्टि से देखें तो ओवरऑल वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा औद्योगिक विकास से बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया, क्योंकि जो इनकम लेवल है वो वहाँ का उतना उठ नहीं पाया, क्योंकि लोग जो एम्प्लॉयड इस क्षेत्र में है औद्योगिक एक्चुअली विकास होने के बाद वो जो है 3rd ग्रेड या 4th ग्रेड के ही लोगों को मैक्सिमम जो है वहाँ पर रोजगार मिल पाया, क्योंकि एजुकेशन लेवल जो है वहाँ पर स्वास्थ्य की जो अरेंजमेंट है वहाँ पर एज कम्पेयर टू वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया वहाँ पर उतना डेवलप नहीं माना जाता है। इसी रीजन में एक दंडकारण्य रीजन है और बहुत ही पॉपुलर है, जो फॉरेस्ट बेस्ड उद्योग और टूरिज्म के लिए ये जो है बहुत ही फेमस है। छत्तीसगढ़ इज अनदर स्टेट एट दैट ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस प्लानिंग रीजन, एंड छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे छत्तीसगढ़ एज ए स्टेट कॉल्ड सॉसर ऑफ पैडी कल्टिवेशन, सॉसर ऑफ पैडी कल्टिवेशन, धान का जो है एक कटोरा माना जाता है। दिस इज वन काइंड का पोर्ट इज देयर, सो बिकॉज वेरियस आई मीन हाई एल्ड वेराइटी सीड्स ऑफ द पैडी आर ग्रोन इन द पर्टिकुलर रीजन। इस एरिया में जो है अच्छे वेराइटी के कई जो है पैडी ग्रोन होते हैं। अगला जो रीजन है आपका गुजरात रीजन, आप देख सकते हैं ये जो आपका 6th रीजन जो है आपका गुजरात है, ये 6th रीजन इज गुजरात, दिस वन रीजन वाइज आप देखें ये वाला रीजन, दिस रीजन इज गुजरात। तो अब चलते हैं गुजरात की ओर। तो गुजरात में देखिए कि 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है? वहाँ पर पेट्रोलियम जो है, वहाँ पर रिफाइनरी इज ए मेन एक्चुअली इंडस्ट्रियल एक्टिविटी माने जो भी आप माने उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट वो प्लानिंग रीजन है, जहाँ पर पेट्रोलियम एंड गैस सेक्टर बहुत डेवलप्ड है, खास करके सौराष्ट्र में। जैसे जामनगर जो रिफाइनरी है वो भी आपका गुजरात में ही पड़ता है। इसमें आप देखेंगे कि अमरेली, राजकोट और अहमदाबाद में बहुत ही फेमस है ये तीनों सिटीज़ फॉर पेट्रोकेमिकल गैस इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो देखिए ये जामनगर का एक पिक्चर है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे साउदर्न गुजरात में वहाँ पर डेयरी फार्म जो है वो बहुत अच्छा खासा डेवलप्ड हुआ है। अमूल और आनंद जो मूवमेंट वहाँ पर जो डेयरी फार्म मूवमेंट जो है वहाँ पर स्टार्ट हुआ था, डॉक्टर कुरियन के द्वारा वहाँ पर जो स्टार्ट हुआ था, उसके कारण आप ये मतलब देखेंगे आनंद और अमूल जो है आज फेमस ब्रांड जो है पूरे इंडिया ही नहीं विश्व में हो गया है। तो ये अब साउथ बिहार से ही, ये साउथ गुजरात से ही ये स्टार्ट हुआ था। तो डेयरी फार्म इज़ अनदर एक्चुअली फार्म एक्चुअली इज़ अनदर सेक्टर वेल डेवलप्ड इन गुजरात। इसके अलावा साल्ट उद्योग जो भारत में जितने भी वाइट साल्ट्स होते हैं, उजला जो हम लोग खाते हैं घर में, ये जो है कहीं ना कहीं अरेबियन कोस्टल एरियाज़ में साल्ट जो है वो बनाया जाता है, और ज़्यादातर जो है साल्ट उसी भारत में सप्लाई होता है उसी एरिया से। अब चलते हैं नेक्स्ट वेस्टर्न राजस्थान। वेस्टर्न राजस्थान 7वां जो है ये आपका देखिएगा कि वेस्टर्न राजस्थान एरिया, यहाँ पर आप देखेंगे कहीं ना कहीं थोड़ी सी ये दिस रीजन कंबाइंड्स ऑफ द अरावली रीजन, ईस्टर्न राजस्थान एंड वेस्टर्न मध्य प्रदेश रीजन। दिस रीजन इज एक्चुअली क्लाइमेटिकली वेरी हार्श एंड दैट इज़ वाई द पॉपुलेशन इज़ लेस। वहाँ जनसंख्या कम है क्योंकि जलवायु जो है वहाँ की जो जलवायु है बहुत ही हार्श मानी जाती है, बहुत ही
कठिन है, और यही कारण है कि वहाँ पर लोग बहुत ही डेंसिटी, वहाँ पर घनत्व जो है जनसंख्या का कम है। यहाँ पर एरिडिटी, पानी की कमी से भी एरिड रीजन और एरिड रीजन इस क्षेत्र को कहा जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखिए वेजिटेशन हालांकि कहीं कहीं पैसेज में यहाँ पर मिलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आप देखेंगे कि इंदिरा गांधी केनाल के बाद ये बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, और खास करके वेस्टर्न राजस्थान में आप देखेंगे कि ये पूरा एरिया जो है प्लानिंग रीजन के रूप में, ये पूरा एरिया जो है वो पहले एकदम डेजर्ट एरिया था और एरिड और सेमी एरिड था। आज वहाँ पर वीट, पैडी भी कहीं कहीं आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। हालांकि उसके अलावा यहाँ पर एक समस्या जो है हुई है, सैलिनिटी की समस्या, खास करके सॉइल जो है फर्टिलिटी जो है थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि एरिड एरिया है। वहाँ पर इरिगेशन की सुविधा के बाद क्या होता है कि ऊपर का लेयर जो है सॉल्ट जो है वहाँ पर जमा हो रहा है, और इसके कारण जो है साल्ट के कारण जो है वहाँ पर सॉइल की जो फर्टिलिटी वो डाउन हो रही है। तो वातावरण से रिलेटेड जो भी जो जैसा वातावरण हो वैसे ही उससे रिलेटेड ही क्रॉप जो है वो बोना चाहिए। खास करके जो ह्यूमिड क्षेत्र है वहाँ पर पैडी का खेती करना चाहिए कहीं ना कहीं। तो अगला चलते हैं हम लोग आरावली रीजन। आरावली रीजन में देखिएगा कि ये आपका ये वाला पार्ट है, दिस इज द पार्ट आरावली रीजन, 8वां नंबर प्लानिंग रीजन। Aravalli region that actually covers the area of the eastern Rajasthan and part of the Madhya Pradesh. The entire region is characterized by undulating terrain condition with the intermittent location of the some fertile river basin. बीच बीच में कहीं कहीं जो है आपका फर्टाइल रिवर बेसिन है, बट ज़्यादातर जो एरिया है वो आरावली का ये अंडुलेटिंग बने उबड़ खाबड़ वाला भूमि है। वहाँ पर माइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके माइका देखिए, स्टोन वगैरह जो है वहाँ पर लाइम स्टोन, कॉपर, सिल्का रेगुलर बेसिस पर वहाँ पर खनन होता है। और जयपुर इज़ वेरी पॉपुलर फॉर प्रीशियस स्टोन पॉलिशिंग सेंटर। आई मीन दैट इज़ फेमस फॉर दैट स्टोन पॉलिशिंग सेंटर के रूप में वो डेवलप्ड हुआ है। इसके अलावा देखिए कोटा का नाम तो आज आप लोग समझते ही हैं, जानते ही हैं कि एजुकेशन हब के रूप में वहाँ पर डेवलप्ड हुआ है। ग्वालियर एंड अजमेर हैव डेवलप्ड एक्चुअली सम ऑफ द industries there. Kota is also famous for cement industry. Now the coaching sector actually centers are well developing in Kota. Some bad news is there, lots of pressure on the students for NEET examination. That is not the part of the planning region, but just I am actually relating those important city with the how actually things are going on in those cities. Now the next is Jammu Kashmir and Ladakh region. That is 9th planning region that is there. And now this is basically when you talk about Jammu and Kashmir and Ladakh region, that can be divided into 3 meso regions, that is Jammu and the Kashmir Valley and Ladakh. So geographically all 3 actually meso regions are there, very important, and they are unique in a particular characteristic. How Ladakh is basically populated by the Buddhist, and Valley, Kashmir Valley is dominated by Muslims actually community, and their cultural, their are totally, I mean different from Buddhism actually, or Buddhist culture. So and Jammu is actually that is majority of the people in Jammu they are Hindus. So religion wise and cultural wise and the terrain conditions are total, I mean different in all 3 meso regions in this Jammu Kashmir and the Ladakh region. Now in Ladakh region, if you see, there are main activities can be like if you see there, you will find dry agriculture. Agricultural practice are actually is very popular in this region. Sheep rearing is very common in the particular region. Kashmir Valley is very that region is very popular for tourism, and some of the important economic activities in Kashmir: horticulture, sheep and goat rearing in this by the local people in Kashmir Valley. Now next planning region is in Trans-Indo-Gangetic Plain and Hills. देखिए इसमें ये प्लानिंग रीजन कहीं ना कहीं जोग्राफिकली डाइवर्स रीजन है. पंजाब हरियाणा इज अ प्लेन रीजन, एंड हिमाचल प्रदेश इज हिली एंड वैली रीजन, एंड द वेस्टर्न यूपी एंड उत्तरांचल, Western UP is a plain region. So meso region, if you see,
this planning region can be divided into 2 and 3 meso region. So if you see the Punjab, Haryana and Western UP is, as you know, this is the area of the green revolution with adequate facilities of irrigation from Bhakra Nagal project, because in 1960s high yield variety seeds and fertilizers and institutional finance actually helped the farmers to develop that actually planning region. So just checking your mic, is that actually working or not? So next is that northern part. If you see Uttarakhand actually, that is Dev Bhumi, that is called Dev Bhumi. So when you talk about economic activities, that horticulture is very famous in that region, and dairy farm and fruits actually cultivation, Haridwar, Rishikesh, Dehradun have become as growth pole in this region. When you talk about Punjab, Haryana, various cities have been developed as industrial hub. For example, Ludhiana is famous for the hosiery and sports instruments. Amritsar, Ambala also having the same actually industries, well developed infrastructure in the particular region. Along with those actually cities, Gurugram, Rohtak, Chandigarh have also developed very good actually market and land use pattern of these cities, and these are the actually modern cities in our country. Now the next is Ganga Yamuna plain, that actually combines states like central and eastern Uttar Pradesh, northern Madhya Pradesh, Bundelkhand and Bagelkhand. अब देखिए कि ये अगर हम दुआओं की बात करें, खास करके दुआ उसको बोलते हैं, देखिए कुछ नदियां जो हैं यूपी की ओर आते हैं, कुछ नदियां जो हैं वो आपके जो है वेस्टर्न की ओर जो है जाती हैं, तो उनके बीच का जो एरिया है दैट इज कॉल्ड दुआओ रीजन, दैट इज वेरी फर्टाइल लैंड. वहाँ पर जो है ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, हरित क्रांति वहाँ पर हुआ था, जिसके कारण हमारा देश जो है कहीं ना कहीं फूड रिक्वायरमेंट में सेल्फ सफिशिएंसी को हासिल किया, मैंने आत्मनिर्भर बना. अब देखिए दूसरा, अगर हम रीजन्स को देखें यहाँ पर दूसरा मेसो रीजन्स को, तो बुंदेलखंड और बघेलखंड. बुंदेलखंड इज ए प्लेस वेर यू फाइंड देयर इज ए प्रॉब्लम ऑफ ड्रॉट इन दिस रीजन, दैट इज कॉल्ड ड्रॉट प्रोन रीजन. ये जो है ड्रॉट से सूखाग्रस्त क्षेत्र है, और यहाँ पर वीट, ऑयल सीड, पल्सेस की खेती होती है. यहाँ पर वाटर सेड मैनेजमेंट हालांकि प्रयास गवर्नमेंट के द्वारा डिफरेंट कार्यक्रम के द्वारा, प्रोग्राम के द्वारा यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन का प्रयास किया गया है, बट पिछले 15 साल में से 15-20 साल से यहाँ पर लगातार जो है एवरेज रेनफॉल कम होने के कारण कहीं ना कहीं ये रीजन अभी भी जो है वो डेवलप है, माने अंडर डेवलप्ड है, ये डेवलप नहीं है. तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि इसमें और प्रयास एक्चुअली करने की ज़रूरत है. इन दिस रीजन यू विल फाइंड सम ऑफ द रीजन लाइक माने सिटीज़ लाइक कानपुर, लखनऊ, or cities like Etawah, Mainpuri, Fatehpuri, Farrukhabad, well developed. Actually, these cities have actually well developed in the area of agro-based service sector. Along with that, you will find that Western UP is now actually developing horticulture, and that is supplying fruits and vegetables in actually NCR region, and soil water management in this sector फार्मर्स आर मैनेजिंग. वहाँ के किसान जो है खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब जो हॉर्टिकल्चर के रूप में रीजन के रूप में ये डेवलप किया जा रहा है. अब हम चलते हैं नेक्स्ट लोअर गंगा रीजन. ये बिहार एंड वेस्ट बंगाल प्लेन के द्वारा ये रीजन प्लानिंग रीजन बना है. आप देखेंगे कि अभी भी बिहार जो है एग्रीगेरियन कम्प्लीटली स्टेट है, और इसको यहाँ पर इरिगेशन की जो सुविधा उतना डेवलप्ड जो है वहाँ पर नहीं है. वहाँ पर इसके कारण जो है वहाँ पर आप देखेंगे कि एग्रीगेरियन सोसाइटी के बावजूद वहाँ पर हेक्टेयर जो है प्रोडक्शन कहीं ना कहीं बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू हरित क्रांति क्षेत्र से अगर कंपेयर करें तो बिहार एग्रीगेरियन स्टेट कृषि प्रधान राज्य होने के बावजूद भी आप देखेंगे कि वहाँ पर प्रत्येक हेक्टेयर जो है वो प्रोडक्शन जो है कम है. उसका कारण रेगुलर फ्लड आता है यहाँ पर, और कोसी हो गया, गंडक हो गया, कई ऐसी वहाँ पर नदियाँ हैं जो प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट अभी तक वहाँ पर डेवलप्ड हो नहीं पाया है, और यहाँ पर ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत जो है भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो रिक्वायर्ड है ज़रूरत है. हालांकि अभी केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा अमाउंट जो है वहाँ के उस मैंने बिहार राज्य के
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में दिया है, और कहीं ना कहीं डैम बनाना या वाटर सेट मैनेजमेंट, इसमें भी एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है वहाँ के जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है लागू किए जा रहे हैं। तो वाटर मैनेजमेंट यदि इस बिहार में यदि हो जाए तो फर्टाइल लैंड है, अच्छा खासा वहाँ का जो इनकम लेवल जो है पर कैपिटा इनकम वहाँ पर बढ़ाया जा सकता है। तो एक ये है। इसमें आप सिटीज़ की बात करें तो पटना, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर आर फेमस फॉर मैंगो एंड बनाना एंड लीची। वहाँ पर देखेंगे भागलपुर इज़ वेरी वेरी फेमस फॉर सिल्क क्लोथ इंडस्ट्रीज़। देखिए आप, ये हस्तकरघा बेस्ड है, तो इसको मैकेनाइजेशन करने की ज़रूरत है वहाँ पर। जो है टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट की जो है वहाँ पर ज़रूरत है, और उसको प्रॉपर मार्केटिंग और ब्रांडिंग जो है वो और अच्छे से करने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है वेस्ट बंगाल की। तो वेस्ट बंगाल इज अनदर मेसो रीजन ऑफ दिस रीजन। दिस इज लोअर गंगेटिक प्लेन। अगर आप देखेंगे ये वाला पार्ट है, तो ये वाला पार्ट जो है आपका 12th पार्ट। तो ये देखेंगे आप, तो वेस्ट बंगाल actually has been very famous for industrial development, and historically British actually established so many initial industries in this region, and starting with the textile and so many jute industries. But we need to have use of modern technology, and renovations and diffusion of technology is required to attract more investment in this state. So political actually willpower is required to have to have more investment in the state, so that जो पुराने जो उद्योग हैं उनको फिर से रिनोवेट करके नए तकनीक के साथ जो है और एम्पावर्ड करते हुए लोगों को जो है वहाँ जो है पर कैपिटा इनकम जो है वहाँ जो लोग उद्योग में लगे हुए हैं उनकी इनकम को बढ़ाया जा सकता है, और स्टेट का जीडीपी भी अच्छा किया जा सकता है। तो अब नेक्स्ट है आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन। नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करें तो ये आपका रीजन है 12th रीजन, प्लानिंग रीजन। दिस रीजन इज रिलेटिवली आइसोलेटेड because not well developed means of communication, but now the government is focusing on through the various actually program through either that is road development, border road actually development program. There are so many actually program जो है hilly area development program. So those actually program are being implemented in these states. And this actually northeast planning region consists of Assam Valley. Assam Valley is famous for tea plantation. Do you know very well? तो आप देख सकते हैं एक पिक्चर में यहाँ पर कुछ महिलाएं जो है वो टी जो है पत्ती जो है चाय की पत्ती को तोड़ रही हैं। एंड यू विल सी इन आसाम यू विल फाइंड अनदर इज पेट्रोलियम। तो वहाँ पर रिफाइनरी हो या पेट्रोलियम ड्रिलिंग हो, ये एक मेजर एक्टिविटी वहाँ पर है। इसके अलावा आप देखेंगे जूट, शुगर केन, फ्रूट्स आर एक्चुअली प्रोड्यूस इन द पर्टिकुलर रीजन। जहाँ तक पाइनएप्पल देखेंगे 60-70% ऑफ द पाइनएप्पल जो है वो इसी एरिया में होता है। खास करके मेघालय में आप देखेंगे ये पूरा एरिया में यहाँ पर पाइनएप्पल होता है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर पाइनएप्पल होता है, नाशपाती जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है ना। तो अनदर इज़ दैट आप यहाँ पर देखेंगे कि इस रीजन में नॉर्थ ईस्ट में अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी से देखें तो हॉर्टिकल्चर का पोटेंशियल बहुत है। दूसरा क्या है कि यहाँ पर जनरेशन ऑफ हैडल पावर, इलेक्ट्रिसिटी का भी पोटेंशियल बहुत है। यदि इस पर सरकार, स्टेट गवर्नमेंट और जो है सेंट्रल गवर्नमेंट फोकस करे तो लॉट्स ऑफ द एक्चुअली dam and the hurdle actually power project can be implemented in this region, in this planning region. तो आज मैंने आपको ये बताया कि जो प्लानिंग रीजन भारत में 1960-70s में जो डिवाइड किया गया 13 प्लानिंग रीजन, आज भी उसका रेलिवेंस है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो इकोनॉमी है वो कैपिटलिज्म की ओर मूव कर रहा है। 1990s के बाद जब से एलपीजी दैट इज़ लिबरलाइजेशन जो है एलपीजी इम्प्लीमेंट हुआ, आप देखेंगे जब से हमारी इकोनॉमी लिबरलाइज्ड हो गई उसके बाद आप देखेंगे कि हमारे जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं जो है पूंजीवाद
की ओर जो है, कैपिटलिज्म की ओर जा रही है। इसके कारण क्या हो रहा है कि रीजनल डिस्पैरिटी जो है वो अभी लगातार जो है बढ़ने की संभावना है, और इसलिए प्लानिंग रीजन का इम्पोर्टेंस जो है वो अभी भी है। और कहीं ना कहीं इंटर स्टेट प्लानिंग रीजन एज ए कॉन्सेप्ट है, अभी तक कोई ऐसा इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, बट अगर एक्सपर्ट के राय को माने तो रीजनल डिस्पैरिटी को कम करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्लानिंग रीजन होना बहुत ही ज़रूरी है। एटलीस्ट इंटर स्टेट बोर्ड जो है खास करके प्लानिंग एक जो है प्लानिंग रीजन में, मैंने प्रत्येक प्लानिंग रीजन में इनफैक्ट जो एक प्लानिंग रीजन में कई स्टेट है, सभी स्टेट मिलकर जो है जिस प्रकार से एनसीआर बोर्ड बनाया गया था उसी प्रकार से इन सभी प्लानिंग रीजन के अपने बोर्ड जो है बनाए जा सकते हैं, ताकि इस एक प्लानिंग रीजन के प्रत्येक प्लानिंग रीजन के अंतर्गत जो स्टेट है, जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वो आपस में मिल करके एक ग्रेटर ऑब्जेक्टिव की ओर जो है वो आपस में कोऑर्डिनेट करके एक डिजायर्ड सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विद द फुल यूटिलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, जितने भी प्रकार के रिसोर्स हैं वो उसको यूटिलाइजेशन करके प्रॉपर लैंड यूज पैटर्न को फॉलो करके हम लोगों के जो है लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ा सकते हैं। तो अभी भी जो है ऐसा लगता है कि प्लानिंग रीजन का महत्व जो है, इम्पोर्टेंस, रेलिवेंस इन दिस कैपिटलिज्म कॉन्सेप्ट और इंडियन कैपिटलिस्ट सिस्टम में भी इसका रेलिवेंस अभी भी है। तो आज इतना ही। इन नेक्स्ट एक्चुअली क्लास वी विल डिस्कस अनदर एक्चुअली टॉपिक. So please subscribe Jeevan Sir Geo online for further video on another topic, and that might be related to the planning and regional planning in India. Thank you so much.